Welcome to the 21st video on As You Like It by William Shakespeare. नाटक As You Like It, जिसके रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं, के इस 21वें वीडियो में आपका स्वागत है. In this video, we shall see Act 2, Scene 7, Part B. इस वीडियो में हम Act 2 के Scene 7 का Part B देखेंगे. This lengthy philosophical statement has since become one of the most celebrated speeches in the Shakespearean canon. They have become so popular that most scholarly people in the Western world recognize the lines, "All the world's a stage," and "all the men and women merely players." Now, in this video, we shall move on to the 7 ages or 7 stages of human life. The statement that has been delivered here through Shakespeare as a dialogue of one of his characters, Jacques, is very important. यहाँ पर शेक्सपियर ने अपने एक पात्र जेकस के मुख से जो संवाद के रूप में थॉट दिया है, आइडिया दिया है कि मनुष्य के जीवन के अलग अलग पड़ाव, अलग अलग आयाम कौन से होते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ है. They have become so popular that most scholarly people in the Western world recognize these lines. Now, these lines have been so popular, so much quoted, so often referred to, that nearly all the scholars are aware of them. इन पंक्तियों को इतना उद्धृत किया जाता है, इनका इतना हवाला दिया जाता है कि लगभग वो हर शख्स जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है या शेक्सपियर पढ़ता है, उसे इन पंक्तियों का ज्ञान आवश्यक रूप से होता ही है. All the world's a stage and all the men and women merely players. ये है वो पंक्तियां जो लगभग हर स्कॉलर को मालूम होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे उसका परिचय हो ही जाता है. The point of view of the speech is colored by Jacques's pessimism. Yet, the speech itself has such imaginative power that it transcends Jacques's melancholy and causes one to pause and contemplate this schematic evaluation of man. Now, it is important to note here that the element of pessimism is shown here as per the temperament of Jacques the character. यहाँ पर जेकस जिस तरह का पात्र गढ़ा गया है, उस हिसाब से वो निराशाजनक, अवसादपूर्ण बात करता है इस डायलॉग में. Yet the speech itself has such imaginative power that it transcends Jacques's melancholy. But the speech has a lot of imaginative power, a lot of philosophy, a lot of thought hidden into it. यहाँ
इस डायलॉग में, इस संवाद में, इस वक्तव्य में इतना कल्पनाशीलता है, इतने दार्शनिकता है कि जेकस का मेलंकोलिक स्पिरिट, जेकस का अवसादपूर्ण स्पिरिट बहुत आराम से, बहुत स्वस्थ तरीके से एक कंटेम्पलेटिव मोड पे जाता है. It causes one to pause and contemplate this schematic evaluation of man, because a person is compelled to contemplate, compelled to think over the thoughts shared by Jacques in this dialogue, and the schematic evaluation of man, the schematic evaluation of a man's life. यहां बात को कहने की तर्ज कुछ भी रही हो, लेकिन श्रोता या दर्शक रुक कर एक बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो बात जेकस ने कही है वो बहुत गहरी है, उसका सोच बहुत गहन है, और हमारे जीवन के ये विभिन्न आयाम, ये विभिन्न पड़ाव वास्तव में हमारे लिए ध्यान देने की का विचार है. और इसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि जेकस ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है. When the audience or the reader thinks about what Jacques has said, although his mood is full of melancholy, but the thought, the idea, the gist of the thought is very important, because this is the truth of life, and that is what compels one to think and ponder about. According to Jacques, these are the 7 ages of man. Now Jacques has told about the 7 ages or 7 stages of our life. The infant, mewling and pucking in the nurse's arms. The original lines spoken by Jacques are that the infant's mewling and pucking in the nurse's arms. An infant, when he comes to the world, he mews, he weeps in a very soft, very low tone, and he is very safe in the nurse's arms. Still he weeps and cries according to the capacity of his voice. यहाँ पर एक शिशु का जो उदाहरण दिया गया है, वो जब दुनिया में आता है तो वो नर्स के बाहों में, या दाई या जो जन्म लेते समय उसके सामने लोग होते हैं, उनकी बाहों में वो धीरे धीरे से रोना शुरू कर देता है. The schoolboy, whining with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwilling to school. Again, the original lines, the original dialogue of Jacques is, the second stage is that of the schoolboy who is whining with his satchel, who is grumbling with his satchel, his school bag. Jacques ने जो सेकेंड स्टेज बताई है वो बताई है स्कूल बॉय की, जो अपनी किताबों का बस्ता लेकर के भुनभुना रहा है, बड़बड़ा रहा है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. यंग है, छोटा सा है, उसके चेहरे पे चमक है, लेकिन फिर भी क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, एक स्नेल की तरह, घोंगे की तरह धीरे धीरे से जा रहा है, अनविलिंग टू स्कूल.
Why he is creeping? Why he is whining? Because he is unwilling to go to school. क्योंकि उसका स्कूल जाने का कोई मानस नहीं है या इच्छा नहीं है. The lover, sighing like a furnace with a woeful ballad to his mistress's eyebrow. Then comes the next stage, the stage in which we people fall in love. All of us live a lover's life. अगली जो स्टेज आती है, जीवन का अगला पड़ाव जो आता है, वो होता है प्रेमी का, जिसमें साइंग लाइक अ फर्नेस, भट्टी की तरह सुलगता हुआ प्रेमी होता है, विद अ वोफुल बैलेट, विद अ वेरी सोरोफुल सॉन्ग टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो. एक ऐसा प्रेमी जिसे प्रेम में धोखा मिला हो, वो अपनी बेवफा प्रेमिका को याद करते हुए एक दुख भरा गीत गाता है या दुख भरा संवाद सुनाता है. ये हमारे जीवन का एक पड़ाव होता है जिससे लगभग हम सब का पाला पड़ता है, हम सबका परिचय होता है और हमें उस धधकती हुई प्रेम में धोखा खाने वाली ज्वाला के अंदर जलना ही होता है. ऐसा अनुभव प्राय सभी के जीवन में आता है. Nearly all of us face this experience in life when we are betrayed in love and we are full of woe, sorrow and melancholy, and sing a song to the mistress's eye, sing a song addressing the lover or the beloved. The soldier, full of strange oaths, bearded, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble's reputation even in the cannon's mouth. Jacques talks about the next stage, which is the life of a soldier full of strange oaths, full of strange commitments, loyalties towards the nation. Bearded, jealous in honor. A soldier is jealous in honor because his commitment is to the honor, reputation of his country. यहाँ पर अगला पड़ाव वो होता है जिसमें हम एक नागरिक होते हैं और हम एक सोल्जर की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं. यहाँ हमारी जो ग्रीवेंस होती है, ईर्ष्या होती है, वो एक ऑनर से रिलेटेड ईर्ष्या होती है, देशभक्ति से संबंधित ईर्ष्या होती है, जिसमें हम अपने देश के प्रति निष्ठावान होने के कारण झगड़ालू हो जाते हैं. क्विक इन क्वारल, वी आर क्विक इन क्वारल, we are quick to put up a fight against anybody who speaks against our nation. That is our element of patriotism. इस स्टेज पर हम झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हम पैट्रियोटिक होते हैं, देशभक्त होते हैं, और यदि हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कहा जाता है तो हमें बहुत आक्रोश होता है और हम झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं. Seeking the bubble's reputation even in the cannon's mouth. Although we are in the mouth of danger, still we are ready to seek the bubble's reputation. हम खतरे में होते हैं लेकिन फिर भी
उस खतरे का सामना करते हुए अपने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ जो इज्जत मिल रही है, यहाँ जो नाम हम कमा रहे हैं, वो एक पानी के बुलबुले की भांति है, एक बबल की भांति है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, हम भुला दिए जाएंगे। फिर भी इस तरह का जज्बा, इस तरह की भावना हमारे अंदर होती है। Let us see the explanatory notes for this part of the play. आइए अब कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो नाटक के इस भाग को समझने में सहायक हैं। Philosophical. To be philosophical is to stay detached and thoughtful in the face of a setback or to approach a tough situation in a level-headed way. Darshanik. Statement, something that you say or write, especially formally. कथन, प्रकथन, वक्तव्य, कही या लिखी कोई बात, विशेषतः औपचारिक रूप से। सेलिब्रेटेड, फेमस, प्रसिद्ध, प्रख्यात। कैनन, a generally accepted rule, standard or principle by which something is judged. स्वीकृत नियम, मापदंड या सिद्धांत जिससे किसी वस्तु का मूल्यांकन होता है। पॉपुलर, liked by many people or by most people in a group. लोकप्रिय, अधिकतर लोगों को पसंद आने वाली वस्तु अथवा व्यक्ति। Scholar, a person who studies and has a lot of knowledge about a particular subject. स्कॉलर वो होता है जिसे हम विद्वान अथवा पंडित अथवा विषय विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। recognize, to know again somebody or something that you have seen or heard before. किसी को पहचानना, पहले देखे या सुने को दोबारा जानना। स्टेज, one part of the progress or development of something. किसी वस्तु की प्रगति या विकास का एक अंश, चरण, अवस्था। To organize a performance of a play, concert, etc. for the public. नाटक, संगीत, समारोह आदि का सार्वजनिक रूप से आयोजन करना। merely, only, just, केवल, मात्र। players, a person who plays a game or sport. खिलाड़ी या नाटक में नाटक को मंचन करने वाला पात्र। Pessimism, pessimism is a negative mental attitude in which an undesirable outcome is anticipated from a given situation. निराशावाद, अवसादवाद या दुख का प्रदर्शन करने वाले भाव। Imaginative, having or showing imagination. कल्पना से उत्पन्न अथवा
कल्पनाशील। यहां हमने ये देखा है कि जेकस की स्पीच में जहां एक और पेसिमिज्म भरा पड़ा है, अवसाद या निराशावाद भरा पड़ा है, उसके साथ ही साथ उसमें इमेजिनेटिव एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें कल्पनाशीलता और भावपूर्णता बहुत अच्छी तरह से समाविष्ट है, क्योंकि जब वो पेसिमिस्टिक डायलॉग बोलता है तो दर्शक, पाठक या श्रोता उस पेसिमिज्म के कारण सोचने पे बाध्य हो जाते हैं, और जब वो सोचते हैं तो उनकी कल्पना में वो सारी बातें आने लगती हैं कि जीवन के बारे में जेकस ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और यहीं से, इस अवसाद से, इस निराशा से ही हम जीवन को समझ पाते हैं या जीवन को एक सही अभिप्राय दे पाते हैं। पोजीशन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, शक्ति अथवा सत्ता। ट्रांसेंड टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की सामान्य सीमा का अतिक्रमण करना, किसी वस्तु की सीमा से परे जाना, आगे जाना, उससे अधिक सोच लेना या अर्थ दे देना। मेलंकली, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस विच लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिरकाल तक रहने वाली विषाद भावना अथवा उदासी। पॉज, a short period of time during which somebody stops talking or stops what he or she is doing, किसी क्रिया या बातचीत में लघु विराम देना। कंटेम्पलेट, कंसिडर, पॉन्डर, थिंक, ओपाइन, विचार करना या अपना विचार प्रकट करना। स्कीमैटिक, अकॉर्डिंग टू अ प्लान और स्कीम, योजना अनुसार अथवा योजनाबद्ध तरीके से। शोइंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स बट नॉट द डिटेल्स, महत्वपूर्ण विशेषताएं न कि विस्तृत विवरण दर्शाने वाले आरेख या प्रस्तुति आरेखीय अथवा सरलीकृत। किसी बात को कहना, उसको बिंदुवार कहना और उसको इस तरह से प्रस्तुत करना कि बिंदुवार समझने या सुनने के बाद उसको सोचने की बाध्यता उत्पन्न हो जाए। इवैल्यूएशन, असेसमेंट, अप्राइजल, डायग्नोसिस, नोटिस, सेंड ऑफ, मूल्यांकन। इन्फेंट, अ बेबी और वेरी यंग चाइल्ड, शिशु या बच्चा, छोटा बालक। म्यूलिंग, क्राई फीबली और whimper like a baby cat, कुनमुनाना अथवा बिल्ली के बच्चे की तरह म्याऊं म्याऊं करना। छोटा बच्चा पैदा होते ही धीरे धीरे दाई के, नर्स के या गोदी में लेने वाले की बाहों में रोना आरंभ कर देता है। Whine, to complain about something in an annoying crying voice.
बुरी लगती रोती सी आवाज में किसी बात की शिकायत करना। टू मेक अ लॉन्ग हाई अनप्लेजेंट साउंड बिकॉज यू आर इन पेन और अनहैप्पी। दर्द या दुख के कारण कराहना अथवा चीखना, चिल्लाना। जैसा कि स्कूल बॉय अपने बस्ते को उठाने के बाद करता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, कंधे पर किताबों का बोझ है और उसे जाने की मजबूरी है, जाना पड़ रहा है, भेजा गया है, इसलिए वो व्हाइन करता है। Satchel, a bag often carried over the shoulder, used by school children for taking books to and from school. स्कूल में किताबें ले जाने का बच्चों का बैग या बस्ता। Furnace, a large, very hot, enclosed fire that is used for melting metal, burning rubbish, etc. धातु पिघलाने, कूड़ा कचरा आदि जलाने के लिए विशाल परिबद्ध धधकती आग या भट्टी। यहां फर्नेस प्रयुक्त हुआ है लवर जो धोखा खाया हुआ है, प्रेमी जो धोखा खाया हुआ है, वो कितना रुष्ट है, कितना आक्रोशित है, और वो उस आक्रोश के साथ अपनी प्रेमिका की बेवफाई का विवरण सुनाता है। उस आक्रोश को भट्टी के साथ जोड़ करके संकेतात्मक रूप से उसकी पीड़ा को दर्शाया गया है। Here, the word furnace has been alluded to the woes of a betrayed lover who has been dished by his beloved and who is complaining against the treatment meted out to him in love, talking about the unreciprocated love of his beloved. Woeful, characterized by expressive of or causing sorrow or misery. पीड़ित, शोकान्वित, दुख से भरा हुआ। लवर जो गीत गाता है वो वोफुल सॉन्ग होता है, दुख से भरा हुआ गीत होता है, पीड़ा से उत्पन्न हुआ गीत होता है। Ballad, a long song or poem that tells a story often about love. प्राय प्रेम विषयक गाथा, कथात्मक गीत अथवा कविता, गाथा गीत। Snail, a type of animal with a soft body and no legs that is covered by a shell. Snails move very slowly. घोंघा, सीपी में रहने वाला कोमल शरीर और बिना टांगों का छोटा जीव जो धीरे धीरे चलता है। A schoolboy, the reference is in Jacob's speech. The reference is in Jacob's allusion to a schoolboy who walks with the speed of a snail because he is unwilling to go to school. यहां जेकस के संवाद में स्नेल को उस स्कूल बॉय के साथ जोड़ के दर्शाया गया है जिसे जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी स्कूल जाने की कतई इच्छा नहीं है। ओथ, अ फॉर्मल प्रॉमिस, शपथ
औपचारिक रूप से ली गई सौगंध। दिस इज एक्ट 2 सीन 7 पार्ट बी। The story of the play continues further, so kindly see the following videos. इस वीडियो में हमने एक्ट 2 सीन 7 का पार्ट बी देखा है। नाटक की कहानी अभी आगे जारी है। कृपया इसके बाद वाली वीडियोस भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद।